ये देखिए, the moment you set the denominator equals 0, the denominator here, you see the variable x is present. So if I write x equal to 0, it means at this point, means when x will be 0 at the origin, the function is taking a jump to infinity. आप देख रहे हैं ये y axis के साथ साथ ये जो curve है is coming close and it will keep going up to infinity. And similarly on the negative x-axis, the curve will come closer and closer to the y-axis and it will go up to infinity. This is actually the graph of a reciprocal function. So you have to call the point of discontinuity. इसको कहते हैं point of discontinuity. The function is discontinuous at this point. तो यहाँ पे अगर x minus 1 होगा तो where will be our function equal to 0? Taking a jump, तो x minus 1 को set कर दीजिए equal to 0. So when x minus 1 is equal to 0 means x will be equal to 1. So at x equal to 1, then the function will be jumping to infinity. फिर आपका कर्व जो है 1 पे नहीं बनेगा, 1 से राइट पर होगा और 1 के लेफ्ट साइड पर यहाँ तक आएगा नीचे नीचे. Okay, but it is not defined at x equal to 1 in case x minus 1 is there in the denominator. See some examples, you can do it from your graph. अच्छा देखिए कि और भी फंक्शन है रेसिप्रोकल. Draw the graph of y equal to 1 upon x square in the interval -4 to +4. So for x values are given, इस x values को आप domain भी कहते हैं, domain of the function. Domain is from -4 to +4. All the values you write in between. अब देखिए यहाँ पर आप नोट करें, the moment you will put x as 0, the function will jump to infinity again. So हम फिर उसके थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट पे दो वैल्यूज लेते हैं जो इस इंटरवल में बाहर मौजूद हैं. डेसिमल के वैल्यूज भी तो मौजूद हैं. So nevertheless, not considering x equal to 0 because at 0 itself the function is jumping to infinity. अब आगे आप जाएंगे तो ग्राफ जो है वो ऊपर ऊपर इसके क्लोज आता जाएगा y axis के, but the curve is not going to touch y axis, not cross y axis. So consider all the points in between -4 to +4 except 0, and then you consider two neighboring points for 0. One is a negative 0.5 and plus 0.5. So at all these points, calculate the value of x square. X square की वैल्यू आ गई सबके लिए और फिर 1 upon x square कर लें. You may make an extra column or you may calculate separately and directly you write y equal to 1 upon x square. For first value, when x is -4, the value for y is coming to be 0.06. Okay, when x is -3, 0.11, at -2, 0.25, at x equal to -1, -1 का square 1 हो जाएगा, 1 upon 1 will remain 1. At -2 तो हो गया, तो 0.5 देखिएगा, इसका square हो जाएगा 0.25 और 1 upon 0.25 comes to be 4. ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा. So keep calculating all the values from the calculator, but try your best to get accurate values. और फिर ये ध्यान में रखिएगा, स्केल ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव होती जाएंगी. So all the y values will become positive. ठीक है, 2 पे रखा, 4 आ गया 0.25, 1 by 9 is 0.11, 1 by 16 is 0.06. अब देख रहे हैं ये रेसिप्रोकल फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है -4 पे -0.06, तो बहुत नीचे वैल्यू थी, क्लोज टू द एक्स एक्सिस. फिर आ गया थोड़ा सा 0.05 से 0.1 पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये पॉइंट, 0.25 थोड़ा सा और ऊपर हो गया, लाइक दैट. -1 पे 1 आ गया. ठीक है, -1 पे 1.
फिर इसके बाद ये 0 माइनस 0.5 है 4, माइनस 0.5 ये लिया और 4 आ गया। और भी वैल्यू आप आगे कर सकते हैं लेकिन बस ये काफ़ी है। तो स्केल हमने ले ली दोनों पे 5 स्मॉल स्केयर्स इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए पॉजिटिव साइड को भी इसी तरह प्लॉट कीजिए। 0.05 पर 4 आ रहा है तो 0.05 ये 1 है, 0.05 इसके मिड में आ जाएगा और उस पर आंसर आ रहा है तो 1 पे 1 आ रहा है लाइक दैट। 2 पे 0.25 है, ठीक है, और 3 पे 0.11 और आंसर। तो join all these points from here to here on the right side, then on the left side. ये जो ग्राफ है इसका है y equal to 1 upon x square. You must mention the equation. लाइन खुद नहीं बोलेगी कि मैं किस चीज का ग्राफ हूँ, that you have to mention the equation of this graph. And in the interval, you are not to exceed from this interval. इससे पीछे और इससे आगे वैल्यूज नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट ग्राफ देखिए क्या है। The graph of the exponential function. बहुत इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म जो होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की y इक्वल टू a बार x। देखिए आपने x स्क्वायर पढ़ा है, x क्यूब पढ़ा है, तो बेस पे वेरिएबल होता था और पावर कांस्टेंट होती थी। इसको उल्टा कर दें, बेस इज ए कांस्टेंट एंड पावर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। फंक्शन इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे 3 की पावर x, 2 की पावर x, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। a is positive number, then function y equal to a power x is defined for all the real values of x. ये कहीं जंप नहीं ले रहा, तो कोई भी वैल्यू आप रखेंगे x की तो y वैल्यू निकल आएगी, इसलिए कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, इसके ग्राफ y equal to 2 power x in the interval, ये एक हमने मिसाल ले लिया -1 से 2.5 तक। जब डोमेन तो आपको दे दी गई है x की वैल्यूज, सो यू राइट, चूंकि हर पॉइंट पे डिफाइंड है तो सारे वैल्यूज रहेंगी। बिकॉज इंटरवल बहुत छोटा सा है तो हमने थोड़ा सा 0.55 का फर्क रख लिया। -1 -0.5 फिर 0 फिर 0.51 1.52 2.5, ताकि कुछ कर्व है तो यू मस्ट टेक एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, 6-7-8 पॉइंट्स तकरीबन। तो रखिए अब इसके अंदर when x is -1, 2 के बाद -1 हो जाएगा 1/2, वह 0.5 हो जाएगा। इसी तरह 0.5 रखेंगे, 1 की पावर 1/2, ये 0.7 बन जाएगा। You can calculate these values from the calculator. 2 power 0, anything power 0 is 1. 0.5 मतलब 2 की पावर 1/2, तो ये आ गया 1.4। 1 रखेंगे, 2 power 1 will remain 1. And keep on putting the values of x, and so you are going to get the values for y. So 2 रखोगे तो 2 to the 4 हो जाएगा, 2 power 2. So once you complete your table, then you keep on plotting all these points on the graph. Surely you have to take the graph paper. On the x-axis, mark all these x values. -1 से शुरू हो रहे हैं, -1 फिर -0.5, 0, 0.23, 0, 2.5 है। तो I am taking the scale as 10 small scales as 1 unit. तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 unit हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0 से 1, तो ये 1 unit। 10 small scales are equal to 1। चलिए इसको प्लॉट कीजिए। At 1 -1 it is 0.5, ऊपर ही आएगा, ये x एक्सिस से ऊपर रहता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी पहचान क्या है, एवरी एक्सपोनेंशियल रिमेन्स अबव द x एक्सिस, ये नीचे नहीं जाता। x एक्सिस को ना टच करता है ना क्रॉस करके नीचे जाएगा। The graph of exponential functions always remain present above the x axis. At -1 it is 0.5, इस कंप्लीट बिग स्क्वायर का हाफ ले लिया हमने। -0.5 ये है 0.7, तो आप देख लें ऊपर हो जाएगा। एट 0 इट इज 1, एट हाफ ये आ गया, इट इज 1.4, ये आ गया 1.4। ओके, कीप ऑन टेकिंग ऑल दीज पॉइंट्स। 2 पे 4 आएगा, ये 2 है, तो 2 पे 4 का मतलब 4 बिग स्क्वायर्स। ओके, ये 2 है एंड दिस इज 4। 2.5 पर
5.7 और ऊपर चला जाएगा 5.7 because this is the interval. इस पे आप इसको प्लॉट कर दीजिए. Start from the left side and keep on joining them with a freehand sketch because the curve is taking a turn. मुड़ रहा है, straight line नहीं होगी, so don't join the points with the help of scale. Rather you ought to join the points with the help of a freehand sketch जो आप अपना freehand बनाएंगे इसको. So this shape is known as the exponential function. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको ये दिए हैं मैंने. आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं करेंगे तो बुरी बात तो होगी, लेकिन वो आपके लिए होगी. फिर इसमें से कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्विज में आ गया, तो मसला आपके लिए होगा. देखिए ये पहले लीनियर इक्वेशन है. क्वेश्चन 1 में एवरी इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन, और हर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन. किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन. अब अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऊपर से नीचे आएगी लाइन, ठीक है. स्लोप विल बी नेगेटिव. इफ इट इज विद ए प्लस साइन द स्लोप विल बी पॉजिटिव. लाइन नीचे से ऊपर जाएगी. इसकी नेगेटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है, इसका भी नेगेटिव स्लोप. सिर्फ ये दिस इज द ओनली क्वेश्चन को पार्ट 2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है ना, दिस इज ओनली क्वेश्चन विद ए प्लस स्लोप. इसकी लाइन नीचे से ऊपर जाएगी. आइए क्वेश्चन नंबर 2 में दी आर द इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला. देखिए जब एक की पार्ट 2 है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शंस यू विल ऑलवेज बी गेटिंग ए पैराबोला. किया था ना हमने. यहाँ पे इंटरवल्स आपको मौजूद, सबके लिए इंटरवल्स दे दिए. सो यू मस्ट कम से कम एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट तो जरूर कीजिए ना, ठीक है. दिस इज योर होम टास्क दैट यू डू एट लीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन. ज्यादा करने का बात अच्छे. This is the cubic function. Okay, interval is given and draw the graph. And these are the reciprocal functions. देखिए हर वैरायटी है आपके पास, और इसका इंटरवल भी दिया हुआ है. अगर इंटरवल छोटा है तो करीब करीब की वैल्यूज लेना है डेसिमल में. अगर फासला बड़ा है तो ठीक है, होल नंबर भी लेना है 1 2 3 4 5. बल्कि इसमें 1 के बाद 1.5 लें, 2 लें, फिर 2.5 लें, क्योंकि कर्व ने घूमना होगा ना. सिर्फ 5 वैल्यूज काफी नहीं होगी, ज्यादा पॉइंट्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. आइए सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द ग्राफ मेथड. वो आपको मैंने अभी करवाया था. 2 इक्वेशन हैं, दोनों को आप टेबुलेट कीजिए. प्लॉट 1 by 1 the lines, and where the 2 lines will be crossing each other, उस कॉमन पॉइंट से वर्टिकली आप एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसी पॉइंट से किस पे, वाई एक्सिस पे. फिर ओरिजिन से वो देखिए फासला कितना है, एक्स एक्सिस पे वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी. अगर 3 यूनिट्स है तो एक्स विल बी 3. वाई पे अगर 5 यूनिट्स जा रहा है तो वाई विल बी 5. बट यू विल मेजर इट फ्रॉम द ओरिजिन. वन एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी डन. ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 6 में. ई एक्स या 3 की पावर एक्स वो भी एक्सपोनेंशियल होता है, और ई एक एक्सप्रेशन फंक्शन है. ई इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसकी वैल्यू की ई की 2.718. ई की वैल्यू थी. बहरहाल ई की वैल्यू मत रखें, डायरेक्टली यू कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेटर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहाँ मौजूद है. आप शिफ्ट दबा के ना लॉग का बटन दबाइएगा, एलएन नेचुरल लॉग. एक LOG है लॉग, वो बेस 10 के साथ होता है, उसको नहीं दबाना. आप शिफ्ट दबा के LN द नेचुरल लॉग उसको प्रेस करेंगे तो ई आ जाएगा आपके सामने. अब ई की अगर x की पावर 3 रखनी तो 3 रखना है, x की पावर क्यूब का आंसर आ जाएगा. सो इन दैट वे यू मस्ट बी एबल टू नो हाउ टू यूज योर कैलकुलेटर्स. Okay, this is one of the very good exercise. I have selected very important questions from some books. तो ये आपके लिए है. अच्छा जी, इस लेक्चर के लिए तो ये हो गया काफी, लेकिन मैं देखता हूँ
मेरा अगला लेक्चर भी होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट। सर हाँ बोले। सर आप प्लीज एक क्वेश्चन करके दिखा दें एक्सपोनेंशियल वाला में। तो अभी आपको क्या दिखा रहा था मैं? एक क्वेश्चन किया तो है आपके सामने, आपने नोट नहीं किया? हाँ? ये जो आखिरी क्वेश्चन किया था, एक मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। 0.6 वाला 0.06। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था आखिरी वाला? सर दिखाएं मुझे लास्ट क्वेश्चन दिखाएं। आप मुझे बताएं ना कौन सा किया था। स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं आपको स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है। हो रही। अब देखो, ये है ना लास्ट क्वेश्चन, ये ना y इक्वल टू 2 पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ही। हाँ? सर ठीक है सर। हाँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर 2 की जगह e लिख दें तो e का फंक्शन आपके पास कैलकुलेटर में मौजूद होता है। ठीक है ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दो ना, अगर शिफ्ट दबाएं और ln का बटन दबा दें, e आ जाएगा। अब उसके आगे जो भी लिखेंगे, x की पावर 3 लिखें, 2 लिखें, वो पावर ऑटोमेटिकली में चला जाएगा। e आने के बाद ठीक आप है 3 लिखेंगे, इसका मतलब है e क्यूब की वैल्यू आपको। ठीक है। ओके सर। तो जब मैं ये समझा रहा था तो आपको नहीं पता था मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझा रहा हूँ? सर वो मैंने देखा था लेकिन कहीं हेडिंग वगैरह नहीं लिखी है। तो ई लिख लें चाहे ऐसे लिख लें तो एक ही बात है। अच्छा, अब मैं एक चीज तलाश करना चाह रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, एक काम करें, ऑल ऑफ यू आर सिटिंग हियर, मैं थोड़ी सी आपको रिवीन करवा रहा हूँ। लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो आप सबको आता ही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा अच्छा है।
आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो हेलो, इज द स्क्रीन शेयरिंग? यस सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। और ये सर स्क्रीन एक ग्राफ आप लोग बनाएंगे अभी अभी, मतलब उसकी टेबल मुझे बनाकर बताइए। और ये एक्सरसाइज जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, इसमें ये वाला ले लें। इसके द फॉलोइंग क्यूबिक फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। प्लीज राइट डाउन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये क्यूबिक फंक्शन है और इंटरवल है -3 लेस देन x इज लेस देन 3। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन। और मुझे इसका ना टेबल बना के पहले बताइए, ग्राफ हम बाद में बनाएंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ यू प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स और इसकी टेबुलेट कीजिए। डोमेन इज गिवन -3 to +3 और इन तमाम वैल्यूज को पुट कीजिए इसमें 1 by 1। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये आपकी डोमेन हो गई। एंड कंप्लीट योर टेबल फॉर y। प्लीज एवरीबॉडी गो अहेड और मुझे फिर आप बताइए कि क्या है ना। ठीक है, आप बनाइए और उसके बाद में कुछ और भी चीजें देखता हूँ आपके लिए। सो यू डू एटलीस्ट दिस क्वेश्चन, बल्कि इसको स्केच भी कीजिए। जी रंगी, हेलो, डिड यू कंप्लीट योर टेबल? जी सर कंप्लीट। शाबाश, बताइएगा y वैल्यू जब x -3 था, y की वैल्यू क्या आई? सर -32। क्यों? सर x जो है वो मैंने -3 कंसीडर किया। तो -27 आया पहला x क्यूब का, और फिर अरे सॉरी सर, मैंने वो -18 x3 - 5 वाला कर लिया। तो ये देखा करें ना। -18 आ रहा है सर हमारे पास। ठीक है, और -2 पे क्या है? बोलो। -2 सर, -2 पर। -2 पे आंसर क्या आ रहा है? -2। जी जी सर। सर। ओके, और 1 पे, -1 पे, 2 आ रहा है सर। 2 -1 पे 2 आ गया, और फिर 0 पे 0 0 0 ओरिजिन से पास करेगा, और 1 पे -2 -2 -2 2 पे आ गया, कितना?
2 पे 2 2 है सर। 2 आ गया, अब 3 पे 18 18 गुड। बस प्लॉट तो कर लोगे ना आप लोग आसानी से, ठीक है। जी ये सर कर लिया। ओके ओके, शाबाश, गुड। बस ये होता है, आदमी जब तक कुछ ना करे ना तो एक खौफ रहता है कि पता नहीं क्या मुश्किल होगी, कितना अजाब है, और अगर कर ले तो इट बिकम्स वेरी इजी, कॉन्फिडेंस रहा। इसी तरह आप सारे एक एक पार्ट मिनिमम अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3 पार्ट है क्वेश्चन 4 का, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। ये -2 ऊपर है, अच्छा, एक होता है एक्स स्क्वायर के साथ नीचे -2, वो एक अलग कहानी होगी। ओके, देखिएगा। अच्छा, अब आप लोग सारे ना, ये तो मैंने स्क्रीन से पढ़ा दिया ना, यू ओपन योर सेल फोन नंबर्स। इस पे वो कुछ एक टॉपिक आपको भेज दिया था मैंने, तो वो देखिए जरा सा। वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो सका है, लेकिन आप अपने उसको खोलिए, व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप पे उस पे खोलिए स्टैंडर्ड कर्व्स। ये तो हमने जनरल कर्व पढ़े थे, नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू द स्टैंडर्ड कर्व्स। आपने ओपन किया अपना सेल फोन? हेलो जी, हाँ, सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की पीडीएफ फाइल शेयर की थी बस। उसके साथ ही है ना, ओके सर। उसी के नीचे तो लिखी हुई है स्टैंडर्ड कर्व्स, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म था, वो 17 जनवरी का लेक्चर देखिए, मैंने भेजा आपको। आपको 2 मैंने भेजे थे ना इकट्ठे, एक था कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा था स्टैंडर्ड कर्व्स। जी Daniel, टेल मी, यू आर गेटिंग इट और नॉट? यस सर, 2 भेजे थे सर आपने। नीचे वाले में क्या है? हाँ, नीचे वाले में क्या टॉपिक है? इस 2 में जो सेकंड था उसका सर क्या? दूसरे वाले का, हाँ, उस पे क्या लिखा हुआ है जी? सर एक्सपोनेंशियल, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद सेकंड वाले में, थर्ड वाले में पोलर फॉर्म से आगे वाला टॉपिक क्या है भाई? डी मॉर्गन्स थ्योरम। नहीं 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 नहीं, आप लोग किसको खोल के बैठ गए हो? सर नहीं है सर, दो आपने व्हाट्सएप पे एक फाइल शेयर करी है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पे नहीं है, और बाकी एलएमएस से जो डाउनलोड करी है उसमें नहीं पता। मैंने इसी ग्रुप में भेजा हुआ है कि नहीं भेजा? आपको नहीं भेजा? नहीं सर, ग्रुप पे नहीं भेजी सर। अच्छा, सिर्फ सर आपने कॉम्प्लेक्स जो नंबर 2 वाली भेजी थी बस, उसके सर अलावा और दोनों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है सर। मैं अभी भेज सर रहा हूँ, आप अभी भेज रहा हूँ, नोट कर लो, आप अभी सेंड कर दे प्लीज। कर रहा हूँ, ये दोनों में भेज रहा हूँ।